पुकार रहा, कुछ ऐसा करो प्रकाश, सभी फरिश्ते उड़ चलो तेरे लिए सकाश। विश्व है पुकार रहा, कुछ ऐसा करो प्रकाश, सभी फरिश्ते उड़ चलो तेरे लिए सकाश। आत्माओं की हम पर लगी है आश, बाबा कहते तुम हो टावर ऑफ सकाश। विश्व है पुकार रहा, कुछ ऐसा करो प्रकाश, सभी फरिश्ते उड़ चलो तेरे लिए सकाश। दुखी अशांत रोगी आत्माओं की पीड़ा हमें भगाना है, बाबा की आशाओं को पूरा करके हमें दिखलाना है। अभी नहीं तो कभी नहीं, यही हमारा नारा है। हम सब एक हैं, सारा संसार हमारा है। माया की अब खैर नहीं, हमने घेराव डाला है। चारों ओर अंधेरे के बीच हमने किया उजाला है, हमने किया उजाला है। विश्व है पुकार रहा, कुछ ऐसा करो प्रकाश, सभी फरिश्ते उड़ चलो तेरे लिए सकाश। उठो जागो विश्व रक्षक, अपना कर्तव्य निभाओ। भय के माहौल से तुम इस संसार को मुक्त कराओ। हम नहीं घड़ी दो घड़ी के योगी, हमारा जीवन है योगी सदा। सेवा में रहने वाले हम रूहानी फौजी हैं, नष्टो मोह बन कर चलते हम मनमौजी हैं। बाबा दादी सदा ही देते हम बच्चों को सकाश। उठो जगत के वास्ते अब छू लो तुम आकाश। दीप राज बाबा की केवल हम पर है ये आस। बाबा कहते मीठे बच्चों तुम टावर ऑफ सकाश। विश्व है पुकार रहा, कुछ ऐसा करो प्रकाश। सभी फरिश्ते उड़ चलो देने लिए सकाश। And good morning to all of my divine brothers and sisters. Further regards and good wishes of Raj Yogani, Manju Didi and Mala Didi to all of you being watching our classes, programs and celebrations on PORC BAM channel on YouTube. Today, I, Sister Abhijita, is here again with a new and very different type of service report for you.
As we all know, there's a new pandemic, COVID-19, which is a global issue. We all are staying inside our house, but the COVID warriors, like doctors, that is, medical department, police department, and administrators, are giving their tireless service. Hospitals are not adequate. Lakhs of patients are dying. We cannot touch the patient or their dead bodies. Instead of all these adverse conditions, we Brahma Kumars and Kumaris are very much thankful to the Supreme Father, our Shiv Baba, for giving us the courage and golden opportunity to serve the warriors of Berhampur and migrants of Ganjam district for nearly 15 days. At last but not the least, we are also very much thankful to the above three departments for giving us the permission and cooperation for the social godly service. The program is as follows. Namaste. I am Ipsarani Padhi of Standard 8. Extend my regards and thankfulness to God and Brahma Kumari sisters. Today I am here to deliver a speech on COVID-19. The novel coronavirus called COVID-19 is a large family of viruses which cause illness ranging from common cold to more severe diseases. It is a new strain that hasn't been identified previously in humans. The first step in preventing this panic is to empower ourselves with factual information about the disease, like how it spreads, what can we do to protect ourselves, our loved one and our community from the disease. This disease has started from China and now it is spreading all over the world very rapidly. Even till today, no vaccines can be discovered for this deadly disease. So, we have to be careful about the disease as people having symptoms and the people who do not have any symptoms can suffer from COVID-19. The most common symptoms of COVID-19 are fever, tiredness, running nose, dehydration, etc. The most important and warning symptom of severe illness is breathlessness. Other symptoms may include high fever that doesn't go away, dehydration, or severe tiredness, etc. And these are the warning signs that we must get medical attention immediately. From the data, we understand that it is the older people and the people suffering from other chronic medical attentions like diabetes, heart disease, lung disease, cancer, etc. are at a higher risk of becoming corona positive. The novel coronavirus transmitted from person to person very easily through respiratory droplets which are expelled when an infected person sneeze, cough or exhale. And now when these droplets are inhaled by other people, he or she also get infected, and this is how COVID-19 get transmitted. In addition to this, some other ways like close contact such as shaking hand, using the same bedding, sharing the same spoon or glass are all the ways of transmitting COVID-19. Some of the precautions made by the government to fight against COVID-19 are regular and effective hand wash as many times in a day as possible, especially after touching the contact surfaces in the public places. We all have been taught to cough and sneeze into our hand to stop the spreading. But unfortunately, in this pandemic time, if you cough and sneeze into your hand and touch the surface around you, you contaminate them. And now that is what touched by the other people and the infection spreads. The best way to go about this is to use a disposable tissue and dispose it after its use. If there is no access for a disposable tissue, then use your bent elbow to cough or sneeze. This will help to prevent the spreading of the droplets into the atmosphere. Make 3 feet social distancing from other people. However, in our environment, in this
a crowded city, it is impossible to imagine this on a crowded train or other transport areas, and hence the only recommendation can be that if there is no need to be in a crowded city or a place, then avoid it as far as it is possible. Use masks properly. Wear it properly. Masks must be worn by the people who are sick. We should do regular meditation and give positive inputs like I am a peaceful soul. I am a powerful being. My thoughts are stable. My immunity level is the highest. I am safe and protected by the energy circle of God. God's power is reaching to every soul in the planet. Just we have to remember God with our pure heart and everything will be fine as it was before. Thank you. ओम शांति। आज ये बताते हुए बहुत ही हर्ष हो रहा है कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ब्रह्मपुर सब जोन से जो विविध कार्यक्रम आप और हम सभी लॉकडाउन के पीरियड में पीयूआरसी ब्रह्मपुर चैनल के ओर से देख रहे हैं, उसमें एक नवीनता, एक मनोरंजक सर्विस देखते हुए बहुत ही खुशी हो रही है। परमात्मा पिता को धन्यवाद देती हूँ जो समय के अनुसार, आवश्यकता के अनुसार साइंस के साधनों को भिन्न भिन्न रीति से व्यवहार करने के लिए, सेवा में जुड़ने के लिए बहुत सुंदर संकल्प देते हैं। हम कभी इंटेंस मेडिटेशन भट्टी करते हैं, कभी धारणा क्लासेस सुनते हैं, कभी फेस्टिवल्स को एंजॉय करते हैं, कभी डिफरेंट बच्चों के प्रोग्राम को भी देख हर्षित होते हैं। लेकिन इस वर्ष देखा जाए तो लॉकडाउन का जो शुरुआत है, जो कि पैनिक था, सबके मन में हलचल था, बदले हुए सिचुएशन को फेस करने के लिए भय, आतंक, हताशा क्रिएट कर रहा था। उस समय में भी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को सरकार के नियम अनुसार एवं हेडक्वार्टर ब्रह्मा कुमारी के नियम अनुसार जो कार्यक्रम स्पिरिचुअल वे में चलते थे, उसमें भी कुछ चेंजेस लाए गए हैं। सभी के मन में घर के अंदर रहना, प्रिकॉशंस लेना कोविड-19 के लिए ये एक जैसे कष्ट साध्य था। लेकिन जो आक्रांत है उनके लिए दया भाव, सहानुभूति, सेवा में हाथ बटाने का जो संकल्प बार बार अंदर से, हृदय से आता था, उसको व्यक्त करने का मौका इस पर हम आपको भी उसका आनंद दे रहे हैं।
कोविड-19 के कारण नियमित सभी हमारे जो सब जोन के सेंटर्स, सब सेंटर्स, गीता पाठशालाएँ क्लासेस में सुबह शाम सारे दिन में 4 घंटे एक्स्ट्रा मेडिटेशन सारे विश्व प्रति आत्माओं के लिए प्रदान तो कर ही रहे हैं, और उसके साथ साथ सभी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भाई बहनें सुरक्षित रहे, स्टे होम स्टे सेफ जो स्लोगन है वो सबको ध्यान में रखते हुए FCC द्वारा रेगुलर जो हमारे परमात्मा पिता के वर्शंस है वो प्रदान करना प्रारंभ किया। ऑनलाइन वो चालू रखना ही पड़ा, जो कि संसार में रहते हुए भी ज्ञान योग पर ध्यान देते धारणावान हो सबके लिए एग्जाम्पल बने। क्योंकि ईश्वरीय विश्वविद्यालय का ये जो सात्विक नियम है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना, योग तपस्या करना, स्पिरिचुअल क्लास को सुनना, मुरली क्लास जो कहा जाता है, और खान पान पर शुद्धता जिसमें तामसिक बिल्कुल नहीं। ईश्वरीय विश्वविद्यालय में तो कोई एडिक्टेड है ही नहीं, लेकिन अपने हाथ का बना के खाना, प्याज लहसुन नॉनवेज चीज़ से दूर रहना, ये तो आदत है ही है। लेकिन एक्स्ट्रा योग तपस्या ऑनलाइन के थ्रू सभी घरों में बैठ के करना, ये बहुत उमंग उत्साहदायक था। लेकिन डेली जो न्यूज़ पर सुनते थे, जैसे जैसे बरहमपुर की बात ही बताती हूँ, अप्रैल के महीने में जैसे बहुत टू मच बढ़ने लगा, बढ़ते बढ़ते मई जून एकदम जैसे फास्ट रीति से बढ़ने लगा, और जुलाई में तो सब कुछ बंद जैसे होने लगा। लेकिन संकल्प आया कि इसी मतलब एडवर्स सिचुएशन में भी हमारे जो पुलिस डिपार्टमेंट के भाई बहनें हैं, जो मेडिकल सर्विस डॉक्टर्स एंड स्टाफ, अदर स्टाफ है, और जो भी ऑफिशियल एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, सभी ऐसे बिज़ी हो गए। ये बहुत मतलब करुण दृश्य है। उसमें बार बार मन में संकल्प उठता था कि हम इन्हों का जो कि कोरोना वॉरियर्स है, इन्हों के लिए कैसे सेवा करें। तो हम आपको शॉर्ट में बताते हैं। 21 मार्च से ईश्वरीय विश्वविद्यालय के सारे ब्रांचेस आने वाले भाई बहनों के लिए बंद ही रहे। उससे पहले मैं सोचती हूँ सप्ताह 10 दिन ही दिन में 4 बार क्लास चलते थे, स्पिरिचुअल क्लास 1-1 घंटे का, जिसमें 10-10 भाई बहनें ही आते थे। फिर तो पूरा ही बंद हो गया, और समर भी टू मच हुआ तो सभी कहते थे अभी थोड़ा कोरोना कम हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर परमिट नहीं होगा उसके लिए।
लेकिन कोई ऑब्स्टैकल उसके लिए नहीं था। तो मैं बाप दादा को थैंक्स देती हूँ, परमात्मा पिता को थैंक्स देती हूँ, हमारे बड़े बहन जी राजयोगिनी ब्रह्मा कुमारी मंजू बहन जी और हम मिल कर के थोड़ा सा प्लान किए। और वो प्लान सर्वप्रथम हम बरहमपुर, जो कि सर्दर्न डिवीज़न के रेवेन्यू कमिश्नर हैं, उनको टेलीफोन ऑफर ज्ञात कराया। तो उस समय उनसे मिलना वर्जित था, तो उन्होंने शुभेच्छा प्रदान किया और ईमेल थ्रू सेंड करने का एक प्रेरणा दी। तो उनसे पहले हम परमिशन लेते हुए सेवा कार्य को प्रारंभ किया। फिर जो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एसपी साहब से परमिशन लिया, प्लानिंग लिया, कैसे करने से ठीक होगा। और उसमें हमारे उस समय के एसपी साहब ब्रदर पिनाकी मिश्रा जी ने IPS बहुत सुंदर प्लान बना के दिए, जिसमें संपूर्ण रूप से सहयोग कैसे करने से पुलिस विभाग के सेवा कर सकते हैं। उसमें DSP JK पटनायक जी बहुत खुशी से ऑफ़र दिया और सारा समय मैं सोचती हूँ लगभग 15 दिन टोटल सर्विस को लगा। तो उसमें जो पुलिस सर्विस है उसमें पूरा प्रेजेंट रह के डिपार्टमेंट के ओर से जो सहयोग रास्ता का, गाड़ी का आदि आदि, और उनके अन्य पुलिस 2 रहते थे, 2-3 ड्राइवर भी, गाड़ी भी, और हमारे भ्राता दीपक बेहरा जी DSI पुलिस के, वो तो पूरे ही प्रेजेंट रह के कार्य को श्रृंखलित रूप से हमने समापन किया। तो ये हम मई 22 से लेकर के जून 3 तारीख तक कायम रखा। तो सर्वप्रथम कोविड-19 में जो सब कुछ बंद रहा, जिसमें अर्थ का भी सहयोग, ये एक वदान्यता है, ये ज़रूरत के अनुसार। तो कोविड-19 CM रिलीफ फंड जो है, हमारे हेडक्वार्टर्स, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर माउंट आबू से परमिशन लेके कलेक्टर के पास उसको सर्वप्रथम प्रोग्राम देते हुए इसका सहयोग किया सेवा में। तो इस प्रकार कार्य को हम आगे बढ़ाते गए, जिसमें हमारा लक्ष्य था कि इनको जो गुप्त वॉरियर्स है कोविड-19 के, जो नॉन स्टॉप सेवा दे रहे हैं, इनको ताज़ा नाश्ते का और गर्मी के, टू मच गर्मी के कारण ठंडा, उसके साथ साथ पानी, और उसके साथ साथ ईश्वरीय कुछ गिफ्ट और परमात्मा पिता का संक्षिप्त परिचय फोल्डर आदि के रूप में, और आवश्यकता के अनुसार 500 मास्क, कुछ सैनिटाइजर भी भिन्न भिन्न जगह में भिन्न भिन्न रूप से
दिया गया। ये हमें बेहद खुशी है कि सभी के सहयोग से ब्रह्मा कुमारी आश्रम की ओर से ब्रह्मपुर सब जोन के ओर से हम 3 बहनें रहती थी और 3 भाई रहते थे, ब्रह्मा कुमार कुमारी, और पुलिस डिपार्टमेंट के ड्राइवर भाई सहित, DSI साहब सहित और 2-3 उनके पुलिस सहयोगी रहते थे। हम सभी सेवा पर निकले, मास्क पहने हुए, सैनिटाइजर लेते हुए, ग्लोव्स पहने हुए, एक नवीन प्रकार के सेवा का जो दृश्य जैसे जैसे हम पहुंचते थे, अंदर से जैसे बहुत सेटिस्फेक्शन का फील करते थे और भय के जगह खुशी भी होती थी। और ठीक इसी प्रकार हमने डॉक्टर्स की भी सेवा के लिए आगे बढ़े, लेकिन टू मच के कारण कोविड-19 हॉस्पिटल में एंट्री ही नहीं था। उसके साथ साथ माइग्रेंट जो आ रहे थे, जो गंजाम के हैं, वो बरहमपुर से एंट्री ले रहे थे। उनके लिए लंच का व्यवस्था, उनको नाश्ते से कोई प्रभाव अच्छा नहीं है। भूखे को भोजन, प्यासे को पानी, और उनके लिए तो आध्यात्मिक प्रवचन भी था। तो ऐसे वो भी माइग्रेंट सेवा भी हमने 2 दिन कर सके, जिसमें 500 माइग्रेंट को हम दोपहर भोजन का व्यवस्था करके दिए। आप सोचते हुए ये तो बहुत जना करते हैं, इसकी विशेषता मैं बताती हूँ। ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नियम अनुसार हम सभी भाई बहनें अपने हाथ से ही परमात्मा पिता शिव बाबा के याद में रहकर प्रस्तुत करते थे। तो डेली हमने टारगेट रखा, नाश्ता 200 तक पहुंचाने का, और भोजन जो है 250 का 2 दिन का, लेकिन नाश्ता तो पूरे 13 दिन चले 200 का। तो हमें बेहद खुशी मिलती थी और सेवा के आशीर्वाद से हमें कहाँ भी संकल्प नहीं आया ये पैंडेमिक डिजीज़ में भी और पीक टाइम पर भी और कड़ी धूप में भी हमें कुछ ना हो जाए, ये बिल्कुल परमात्मा पिता का जैसे छत्र छाया के अंदर रहा। दूसरों के मुख पर कुछ हम खुशी दे सके, उनको भयमुक्त कर सके, वो हम अभयवाणी प्रवचन थोड़ा समय सुनाते थे भी, योग भी कराते थे। कैसे अन्य को जीवदान देना है तो मनसा स्तर से हम वो वाइब्रेशन सभी तक पहुंचा सकें, वो कैसे करते हैं। तो बहुत सुंदर रूप से कार्यक्रम को करना हुआ और हम बहनें भी समर्पित होने से भी सेवा करने का ये एक
नया तरीका। तो इसमें मुझे बाप दादा याद आते हैं। बाप दादा कहते हैं, तुम निर्भीक होकर सेवा करो, देह के भान से उतरकर आत्मिक शक्ति लेकर के परमात्मा अटल विश्वास लेके सेवा करो। तुम्हें कोई भी परिस्थिति व्यक्ति रोक नहीं सकता। तो वो चीज़ हम अनुभव कर रहे थे। हमारे पाँव कहाँ, हमारे हाथ द्वारा क्या सेवा हो रही है, हम कहाँ खड़े हैं, हम क्या संदेश दे रहे हैं, हम क्या बांट रहे हैं, उसका बिल्कुल भान से परे थे। ये अनोखा सुखदायी सेवा बहुतों के प्राण को जिए दान देना, उसकी कुछ झलक हम आपको दिखाएंगे तो ही, लेकिन एहसान सबका मानते हुए हम आपको रिपोर्ट थोड़ा सा बताते हैं। सेवाओं के अनुसार सर्वप्रथम मैं जैसे कह रही थी, हमारा संदेश और ओवर टेलीफोन ईमेल के द्वारा शुभेच्छा लिए ब्रह्मपुर सर्दन डिवीज़न के कमिश्नर भ्राता ऑनरेबल टियाओ महोदय से। उसके बाद हम 3 बहनें छत्रपुर हेडक्वार्टर में पहुँचे, जो कि ब्रह्मपुर से 22 किलोमीटर दूरी पर है, और परमिशन लेते हुए कलेक्टर साहब भ्राता विजय अमृत कुलंगे जी IAS DM एंड कलेक्टर के पास पहुँचे और चेक द्वारा जो CM रिलीफ फंड है उसके निमित्त सहयोग दिया। फिर हम चले DIG ऑफिस में। DIG साहब जो कि हमारे भ्राता सत्यव्रत भोई जी, सीनियर IPS सर्दन रेंज का, वो भी बहुत खुश होके अपने स्टाफ सहित एक ब्रह्मा कुमारीज का सेवा का भाव को समझा और वहाँ सेवा हुई। फिर हम चले SP ऑफिस में, जिनके पूरा प्रोग्राम अनुसार ये सेवा आयोजन हुआ था। वो है SP पुलिस भ्राता पिनाकी मिश्रा जी, IPS पुलिस सुपरिटेंडेंट बरहमपुर। ऑफिस में भी बहुत सुंदर सेवा हुई। 103 कैंडिडेट थे, बहुत समय दिया वहाँ। उसके बाद सेवा हुई डिस्ट्रिक्ट एक्साइज सुपरिटेंडेंट ऑफिस में। एक्साइज
सुपरिटेंडेंट भ्राता रामचंद्र मिश्रा जी ने भी बहुत सुंदर आह्वान किया और सारे ऑफिस स्टाफ सहित परमात्मा पिता का संदेश सुना और लॉकडाउन के बाद माउंट आबू विजिट करने का इच्छा प्रकट किए। फिर सेवा थी STJM ऑफिस ब्रह्मपुर, जिसमें स्वयं STJM महोदया सिस्टर सरोजिनी साहू जी बहुत सुंदर स्वागत करते हुए सभी स्टाफ सहित का सेवा करने का मौका दी। ये सभी हमारे सेवा के बहुत इम्पोर्टेंट ऑफिस में बहुत सुंदर कार्यक्रम का अरेंजमेंट किया। इन सभी को बहुत बहुत दिल से थैंक्स निकलता है। और जो सेवा में 13 दिन तक हम इस प्रकार बिजी रहे, डेली 200-250 की सेवा चलती थी पुलिस डिपार्टमेंट की, जिसमें 17 पुलिस स्टेशन हमारे बरहमपुर पुलिस डिस्ट्रिक्ट में के अंदर आता है, अंतर्गत है। तो 17 पुलिस स्टेशन हैं। गोलंथरा, गोसाणी नवागांव, गवर्नमेंट रेलवे, बीएनपुर, ये सब पुलिस स्टेशन है, थाने हैं। MKCG मेडिकल कैंपस, NRG PS, महिला PS, टाउन PS, बड़ा बाजार, साइबर क्राइम, सदर, गोपालपुर, सदर कोट PS, गोपालपुर PS, मेराइन, दिगोपहंडी PS, के नुआगांव PS, जरोड़ा PS आदि आदि। फिर थे 3 SDPO ऑफिस, एक चिकिटी SDPO, एक सदर SDPO, एक टाउन SDPO। उसके साथ साथ रिजर्व पुलिस ऑफिस, एक्साइज ऑफिस कोनिसी, DPO ऑफिस बरहमपुर एंड गवर्नमेंट रेलवे GRP ऑफिस, और उसके साथ साथ 12 आउटपोस्ट थे। लांजीपल्ली आउटपोस्ट, बीजीपुर मेडिकल, कम्मापल्ली, भापुर टाउन, निमखंडी आउटपोस्ट, खारियागुड़ा, चिकिटी, नुआपड़ा, तुम्बा, भंजविहार आउटपोस्ट। इस प्रकार से 30 से भी अधिक स्थानों पर
सेवा हुई। और एक नवीनता जो आकर्षक था वो भी बताती हूँ। उस सेवा है गोलनथरा टोल गेट। वो जबकि बरहमपुर साइड से सभी माइग्रेंट का एंट्री गेट था। ये एक देखने वाली दृश्य जिसमें 30 के करीब ऑफिसर्स, जैसे तहसीलदार है, सब कलेक्टर उस दिन उपस्थित थे, और उनके जो सीनियर आईआईसी है, कुछ डॉक्टर्स होते हैं, वहाँ ही सारे टेस्ट होते हैं। कोविड के सारे टेस्ट वहाँ ही बस रोक रोक के कर रहे थे। उनकी सेवा करके ऐसे 30 ऑफिसर थे। बहुत खुशी हुई। धूप में खड़े हुए, शेड के अंदर खड़े हुए, ये जो सेवा दे रहे थे, अनरेस्ट सेवा, दिन रात। और एक सेवा जो कि देखने वाली है वो है ट्रैफिक पुलिस की। सारा दिन धूप में खड़े हुए पुलिस भाइयों को, बहनों को देखते हुए बहुत ही अंदर से शिव बाबा याद आता था कि शिव बाबा इनको छतरी खोल के सदा रखे और धूप और बारिश से इनको सेफ रखे और कोविड से भी सेफ रखे। तो उस मौके में हमें ट्रैफिक के डीएसपी साहब और आईआईसी साहब से मिलना हुआ, जिसमें आईआईसी साहब बताए कि हम ब्रह्मा कुमारी इसको जानते हैं, कभी कभी जाते भी हैं। ऐसे कोई जैसे शिव बाबा को जानते थे। और प्रोग्राम के बाद तो सब कोई ही परिचित हो गए परमात्मा पिता से, ब्रह्मा कुमार भाई बहनों से और ईश्वरीय विश्वविद्यालय से। तो हम टोटल 3 गाड़ियों में निकलते थे, खाना और गिफ्ट, फोल्डर, संदेश आदि सब लेके। ये खुशी के समाचार व्यक्त करने के साथ हम उनके नाम सहित, संख्या सहित फ़ोटो आपको ज़रूर दिखाएंगे। उसका भी आप आनंद लीजिए और मन ही मन संकल्प में शिव बाबा को थैंक्स दीजिए। और जो उसके द्वारा बेनिफिटेड हुए माइग्रेंट्स का भी सेवा तो हम भूल नहीं सकते। इतने भूखा प्यासा होते थे, दिल करता था हर दिन हम दें, लेकिन खुद बना के खिलाना और एक आर्थिक एस्टीमेट के अनुसार चलना, वो भी एक जैसे सीमा थी। तो जैसे भी हो, लेकिन 15 दिन की ये सेवा हम जीवन भर भूल नहीं सकते। उस खुशी को आपको भी प्रदान कर रहे हैं। और आगे का कार्यक्रम भी आप फोटो बेसिस पर देखते जाइए और अपने को खुश करते जाइए। उन लोगों को भी आप उमंग उत्साह देते चलिए। ओम शांति। ओम शांति। प्यारे बाप दादा और मीठी दोनों बहन जी, आज संपूर्ण पवित्रता मौन भट्टी में हम जो हमारे अंदर जो गुण व दिव्य गुण की कमी हो जाती है वो भरपूर करने के लिए ये लक्ष्य रखकर संपूर्ण और संपन्न कैसे बनेंगे,
तो हमारे जीवन जैसे सुगंधित कैसे बनेगी, इसीलिए हम दिव्य गुणों को भरपूर करना है। आत्मा में जो गुण है उस गुण को हम बार बार प्रयोग करने से उसके अंदर जो दिव्य गुण आता है, जैसे मधुरता, नम्रता, धैर्यता, तो उसमें सबसे श्रेष्ठ व सबसे अच्छा है मधुरता। मधुरता ऐसे गुण है जो सब में ज़रूरत होती है। सत्यता में भी अगर मधुरता ना होने से भी वो कुछ अच्छा नहीं लगेगा, वो कड़वा लगेगा। अगर कोई किसी को सत्य बात हम डायरेक्ट बोल देंगे उसको कड़वा लगता है। जैसे सैक्रिन स्वीट जो शुगर फ्री होता है, अगर हम डायरेक्ट मुख में डाल देंगे तो वो कड़वी लगेगा। अगर उसमें किसी में मिला देंगे तो चाहे चाय में, दूध में मिलाने से जैसे मिठास आ जाती है, ये मधुरता ऐसे गुण है सब में ज़रूरत होती है। इसीलिए हम पहले मधुरता का अर्थ क्या है, मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध, संपर्क, व्यवहार सब में अंदर और बाहर समान होना चाहिए, मिलावट और नहीं होना चाहिए। उसको कहा जाता है मधुरता। मधुरता ऐसे गुण है जो कहते हैं ना, बाबा भी जब मुरली चलाते हैं तो पहली महावाक्य क्या सुनाते हैं, मीठे मीठे बच्चे। तो हमको भी मधुर बनना चाहिए, मधुर बोल बोलना चाहिए। जिसके पास मधुरता की गुण होता है वह प्रभु प्रिय और सर्व की प्रिय भी होते हैं। जो जिसके पास मधुरता के गुण होते हैं वह धैर्य भी होते हैं, धैर्यता उसके आती है। और बोल में भी वो सत्य बोलेंगे लेकिन नम्रचित के साथ मधुर बोलेंगे। इसीलिए आज दुनिया में अशांति, दुखी, अराजकता का कारण है ये मधुरता की कमी। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य में अंतर, ये गुण व दिव्य गुण की कमी होने के कारण ही अंतर होता है। इसीलिए जैसे बाबा ने कहा मधुमक्खी है, मधु उसके रस और स्वाद लेने के लिए सब तरसते हैं। इसी प्रकार हमारे मुख से जो मधुर बोल सबको जैसे कुछ सुनाई करके सब जागरूक होकर रहेंगे। हमारे मधुर बोल से बाप दादा को भी हम प्रत्यक्ष कर सकेंगे। बाप दादा बोलते हैं, मधुर बोल व ज्ञान युक्त बोल, युक्ति युक्त बोल से ही हम सबको संतुष्ट कर सकते हैं। इसीलिए दिव्य गुण की गुलदस्ते में मधुरता हमारे अंदर कैसे आए, बाबा को हम हर पल अगर योग युक्त होकर कोई भी कर्म करेंगे तो मुख में भी मधुरता आ सकती है। तो चले हम शरीर से अलग होकर बुद्धि में सर्व व्यर्थ और नकारात्मक सोच से ऊपर उपराम स्थिति में मेरी मीठी प्यारी बाप दादा जो
सर्वगुण सर्व शक्ति में भरपूर भंडार है। बाप दादा मुझ आत्मा को मधुरता के गुण से भरपूर करती है। जिस मधुरता के गुण बिगड़ी को भी बनाने वाले हैं, बाबा से वो गुण धारण कर सारे विश्व के सर्व आत्माओं को प्रदान करती हूँ। जिस मधुर बोल द्वारा दुखी अशांति आत्मा भी शांत चित्त हो जाती है। मधुर बोल द्वारा बाप जो ज्ञान प्रदान करते हैं, सत्यता और मधुरता को हम औरों को प्रदान करेंगे। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। भरते हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे किरणें बिखरा कर। पवित्रता का सूर्य बने सुख दे किरणें बिखरा कर। प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हो प्रेम के सागर बनकर भर दे खाली मन की गागर। हृदय की शुभ भावना अब आए प्रभु के पास। भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले प्रकाश।
चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार, दुखियों की चित्कार सुने भक्तों की करुण पुकार। दीनहीन है मांग रहे सब दे सबको अधिकार, हो दीनहीन है मांग रहे सब दे सबको अधिकार। अपना ही परिवार सब है सबको हो ये विश्वास, भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। प्रभु मिलन की लगन में आए सभी मगन हो जाए, प्रभु मिलन की लगन में आए सभी मगन हो जाए। प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए, हाँ प्रकृति और माया दासी बन झूला हमको झुलाए। मनसा सेवा करते प्रभु के मन में करें निवास, भर दे हम शुभ संकल्पों से, भर दे हम शुभ संकल्पों से धरती और आकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश। मनसा सेवा चलो करें, हम देते चले सकाश, हम देते चले सकाश, हम देते चले सकाश, हम देते चले सकाश।